تائی جان آپ یہاں رکے، میں سلطان انکل کے ساتھ باہر دیکھ کر آتی ہوں، رابیل بولی اور گیٹ سے باہر نکلی۔ کچھ پتہ چلا؟ نور نے کھڑکی سے اسے باہر کھڑے دیکھا تھا سلطان کے ساتھ تو بولی۔ نہیں یار، اس نے اوپر دیکھ کر کہا۔ انکل آپ اس سائیڈ پر دیکھیں حویلی کے، میں دوسرے سائیڈ پر دیکھتی ہوں، رابیل نے سلطان سے کہا تو سلطان حویلی کے ایک طرف بڑھا اور رابیل دوسری طرف۔ بچاؤ، چھوڑو مجھے، ایک دم ایک گاڑی آ کر اس کے پاس رکی۔ انہوں نے اس کی ناک پر ٹشو رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا اور گاڑی میں ڈالنے لگے۔ رابی! نور یہ دیکھ کر زور سے چیخی اور نیچے کی طرف بھاگی۔ سلطان انکل گیٹ پر پہنچ کر اس نے زور سے آواز لگائی تو سلطان بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس نے اس سے پسٹل کھینچی اور گاڑی کے ٹائر کا نشانہ لیا اور فائر کیا۔ سب حیرت سے اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی اور دنیا سے آئی ہو۔ گاڑی کی کھڑکی سے ایک آدمی نقاب کیے نکلا اور اس کا نشانہ بنایا۔ گولی اس کا بازو چھو کر نکل گئی اور وہ لوگ چلے گئے۔ اس کا بازو خون کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے پسٹل پھینکا اور گاڑی کی طرف بھاگنے لگی، جیسے اس کے بھاگنے سے گاڑی رک جائے گی، لیکن گاڑی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ پھر بھی بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ آگے سے آتی گاڑی سے وہ بری طرح ٹکرائی اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ گاڑی رک گئی تھی ورنہ وہ دور جا کر گرتی۔ گاڑی سے دریاب باہر نکلا اور اس کی طرف بھاگا۔ سلطان بھی تب تک اس کے پیچھے پہنچ چکا تھا۔ نور اٹھو نور! دریاب نے اسے ہوش میں لانا چاہا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے گھر تک لے کر جائے۔ اس کی نظر اس کے بازو پر پڑی، اتنا خون! وہ دیکھ کر بولا اور اس بازو پر ڈالا اور گھر کی طرف تقریباً بھاگتا ہوا گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بازو پر کیا ہوا ہے؟ اس نے ساتھ بھاگتے سلطان سے پوچھا۔ سلطان نے مختصر سی بات بتائی جس کو سن کر وہ پاگل ہونے والا ہو گیا۔ نور کو گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل کی طرف بڑھا، کیونکہ پہلے اس کا ہوش میں آنا ضروری تھا۔ ساتھ ساتھ وہ فون پر اپنے بندوں کو باتیں سمجھا رہا تھا۔ جیسے ہی ہاسپٹل آیا، پہلے وہ خود اترا، پھر نور کو اٹھایا اور اندر کی طرف بڑھا اور اسے اسٹریچر پر ڈال کر وارڈ بوائے کے ساتھ اندر کی طرف بڑھا۔ ہوش جلدی آ گیا تھا اسے اور بازو پر گولی چھو کر گزری تھی، اس لیے بچت ہو گئی تھی، لیکن زخم کافی گہرا تھا۔ اس کو لیا اور واپس گھر کی طرف بڑھا۔ سارا راستہ دونوں میں خاموشی رہی۔ بیٹا رابی کو لے گئے وہ لوگ۔ یہ گھر میں داخل ہوئے تو مبین بیگم دریاب کے ساتھ لگ کر رونے لگی اور بولی، آنٹی آپ پریشان نہ ہو، نوری کے ہوتے ہوئے رابی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ نور ان کو چپ کرواتے ہوئے بولی۔ دریاب نے ایک نظر اس کو دیکھا جس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں تھا، بلکہ دریاب کی طرح اس کی آنکھوں میں بھی غصہ تھا۔ حیرت کی بات تھی، ورنہ لڑکیاں تو ایسے حالات میں رو رو کر برا حال کر لیتی ہیں اپنا۔ اماں تم پریشان نہ ہو، رات سے پہلے رابی یہاں تمہارے سامنے ہوگی۔ اس راجہ کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اس نے، دریاب غصے سے بولا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو ہاتھ میں 9mm گن لیے وہاں پہنچا۔ اب میں رابیل کو لے کر ہی آؤں گا، وہ بولا اور وہاں سے باہر کی طرف بڑھا۔ یہ تو بہت غصے میں گئے ہیں، اللہ نگہبان، نور اس کے پشت دیکھ کر بولی جو اب گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ میں نماز پڑھ کر آتی ہوں، عائشہ پلیز تم آنٹی کے پاس ہی رہنا۔ نور اٹھی اور بولی۔ مبین بیگم کی طبیعت خراب تھی، اب وہ دوائی کی وجہ سے سو چکی تھی۔ نور بولی تو عائشہ نے سر ہلا کر جواب دیا تو نور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اللہ جی پلیز رابی کو کچھ نہ ہو، آپ اس کی اور اس کے بھائی کی حفاظت کرنا، اللہ پاک ان کو خیر سے گھر واپس بھیج دے۔ یا اللہ میرے بابا آپ نے لے لی ہیں، پلیز رابی مجھے واپس کر دے۔ میں اب کسی اپنے کو کھو نہیں سکتی، میں مضبوط بس نظر آتی ہوں، لیکن اللہ جی آپ تو جانتے ہیں کہ میں مضبوط نہیں ہوں۔ میں زندگی میں سب سے زیادہ اپنے کھونے کے بجائے دوسروں کے کھونے سے ڈرتی ہوں۔ یا اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھ اور مجھے ہمت دے کہ میں ان برے لوگوں کا خاتمہ کر سکوں، آمین۔ اس نے دعا مانگی اور ہاتھ منہ پر پھیر لیا اور بہت دیر جانماز پر بیٹھی رہی اور سوچتی رہی، کیا خیال ہے پھر اللہ جی؟ دکھا دوں سب کو اپنا اصل روپ؟ اللہ جی میں اپنی طاقت صحیح کام کے لیے استعمال کرنے والی ہوں، پلیز میری مدد کرنا، اور تھینک یو سو مچ اللہ جی، لو یو سو مچ۔ کچھ دماغ میں آتے ہی وہ اوپر کی طرف دیکھ کر بولی
और खड़ी होकर जानिमाज़ तय करके बेड पर रखा। अब बताती हूँ इस राजे माजे को कि किस बला के जान के टोटे को उठाया उसने। ये राबी का भाई अभी तक क्यों नहीं आया? रात के 12 बज गए थे, अभी तक दरियाब का कोई अता पता नहीं था। नूर कब से उसका इंतजार कर रही थी। राबी का भाई आ गया क्या? आयशा कमरे में दाखिल हुई तो नूर ने फौरन उसे देखकर पूछा। नहीं आया अभी तक, सब परेशान हो रहे हैं, आयशा बोली। ओहो, तो फोन नहीं किया उन्हें? नूर ने पूछा। कब से कर रहे हैं अंकल भी और आंटी भी, पर वो उठा ही नहीं रहे, आयशा ने बताया। उनका नंबर आता है तुम्हें? नूर ने पूछा। हाँ जी आता है, क्यों? आयशा ने कहा। जल्दी से मुझे लिखवाओ, नूर बोली और अपना मोबाइल उठाकर इसका नंबर नोट किया। आयशा मुझे बताओ, उस कुत्ते, मेरा मतलब है राजे माजे का डेरा कहाँ है? नूर मोबाइल पर कुछ करते हुए बोली। दरियाए सवां है ना, यहाँ उसके पास एक दरबार है बाबा रावी के नाम से, उसी से कुछ फासले पर है, आयशा बोली और उसे रास्ता समझाया। सही, बाजी दरियाब साहब का फोन आया है, वो आपको लेने आ रहे हैं, आप अपनी पैकिंग करें। अभी नूर बोल रही थी कि नसरीन कमरे में आकर बोली। क्या, मुझे लेने के लिए? लेकिन क्यों, और जाना कहाँ है? नूर ने नासमझी से पूछा। वो आपको वापस इस्लामाबाद छोड़ने जा रहे हैं, नसरीन बोली और वहां से चली गई। लेकिन क्यों? मुझे नहीं जाना वापस जब तक राबी नहीं आ जाती। यार आयशा कुछ करो ना। नूर नो रो देने वाली हो गई। मैं क्या कर सकती हूँ यार, मेरी वजह से पहले ही ये लोग बहुत मुश्किल में हैं। और सही तो है, तुम चली जाओ यहाँ से और कभी ना आना यहाँ, आयशा बोली और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। पागल रो क्यों रही हो? अच्छा मैं चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। अब ठीक है, नूर ने इसे गले से लगाया और बोली। जाओ शाबाश, तुम आंटी के पास जाकर बैठो, मैं जरा पैकिंग कर लूं, नूर बोली तो आयशा सर हिलाकर वहां से चली गई। जाने वाली तो मैं भी नहीं राबी के बगैर, अब तो उस माजे का भी पता चल गया है कि वो कहाँ मिलेगा। नूर पैकिंग कर रही थी और सोच रही थी। जी तो सबसे पहले मुझे चाहिए सुर्ख मिर्च, लेकिन उसके लिए तो मुझे किचन में जाना पड़ेगा। चलो फिर किचन की तरफ। वो बड़बड़ाती हुए छुपते हुए किचन की तरफ बढ़ी। शुक्र है कोई नहीं है यहाँ, किचन खाली देखकर बोली और अंदर दाखिल हुई। अब ये मिर्च कहाँ मिलेगी, वो सोचते हुए बोली और कैबिनेट खोलने लगी। बेटा आप यहाँ क्या कर रही हो? नसरीन ने एकदम किचन में दाखिल हुई और उसे देखकर बोला। ओ शिट, ये कहाँ से आ गई? वो इसकी आवाज़ सुनकर बड़बड़ाई और इसकी तरफ मुड़ी। आंटी मैं चाय बनाने आई थी, वो बोली। बेटा मैं बना दूंगी, आप जाकर पैकिंग कर लो। नहीं नहीं, आप आंटी के पास बैठे, मैं खुद बना लूंगी, आंटी को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम, आप जाएं, नूर बोली। लेकिन बेटा आंटी आप जाएं, इनको आपकी बहुत ज़रूरत है इस टाइम। नसरीन कुछ कहने लगी थी कि नूर बोली। ठीक है बेटा, जैसा आप कहो, नसरीन बोली और वहां से चली गई। शुक्र है, चल नूरी जल्दी लाल मिर्च ढूंढ, इससे पहले कि कोई और आ जाए। नूर जल्दी जल्दी मिर्चें ढूंढने लगी। ये डालूं किस में अब? लाल मिर्च का डब्बा हाथ में पकड़कर सोचने लगी। ये पूरी रख लेती हूँ, अमीर लोग हैं और ले आएंगे मिर्च भी और मिर्च वाली बोतल भी, नूर बोली और मिर्च के डब्बे को अपने दुपट्टे में छुपा लिया और कमरे की तरफ भागी। एक चीज तो हो गई, इसने अपना पीछे पहनने वाला बैग निकाला और उसमें चीजें रखने लगी। एक रस्सी भी चाहिए यार, अब ये रस्सी कहाँ से मिलेगी? वो सोचते हुए बोली। चल रस्सी का बाद में कुछ करती हूँ, पहले कुछ मोती चाहिए मुझे, वो बोली और राबेल की ज्वेलरी में से ढूंढने लगी। खुद तो इसने कभी कोई ज्वेलरी नहीं पहनी थी ना खरीदी थी। यार मोती तो है नहीं इसमें, एक काम करती हूँ, ये माला तोड़कर मोती निकाल लेती हूँ, वो सफेद मोतियों की माला देखकर बोली और दोनों हाथों से पकड़कर उसे खींचा और वो टूटकर सारे मोती जमीन पर बिखर गए। फिटे मुंह, वो बोली और जल्दी जल्दी जमीन पर गिरे मोती उठाकर अपने बैग में डालने लगी। 2-3 दुपट्टे अलमारी से निकाले, वो भी अपने बैग में रखने लगी। रस्सी ना मिली तो यही काम आ जाएंगे। नूर ने कराटे, बॉक्सिंग और फायर करना सब कुछ अपने वालिद से सीखा था और उनके बाद इसने कराटे क्लब ज्वाइन किया था। लेकिन इसके वालिद ने एक बात समझाई थी कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर अपने फायदे के लिए नहीं करेगी, लेकिन ये वादा भी लिया था कि किसी के साथ बुरा नहीं होने देगी। आज तक उसे ऐसा मौका नहीं मिला था, लेकिन अब उसे राबेल को बचाने के लिए और उन घटिया लोगों को सबक सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करना जरूरी था। इसकी माँ के अलावा ये बात और कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि राबेल जिसको ये हर बात बताती थी, इसको भी ये बात पता नहीं थी।
मैं बेटी हूं ना तो क्या हुआ, आखिर इंसान हूँ। मेरे दुनिया में आते ही बहुत से वसवसे आकर मेरी माँ को डराते हैं। मेरे लिए लोगों की निगाहों से फकत हवस या आग के शोले बरसते हैं। मैं बोलूं तो कहा जाता है अच्छी लड़कियां बोला नहीं करती, चुप रहती हैं। वो अपने बाप भाई के हर फरमान को सुनती हैं और सर झुकाती हैं कि वो हर हाल में कुंबे की इज्जत बचाती हैं। मैं अगर कुछ सोचूं तो मेरी सोचों पर ये कह के अक्सर कुतरे जाते हैं कि अच्छी लड़कियां बिला वजह बातें नहीं करती और सोचा नहीं करती। लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे खालिक ने मुझे इंसान बनाया है, मेरी हर चीज का अदराक बख्शा है। दरियाब की गाड़ी दूर से नजर आई तो सुल्तान ने दरवाजा खोला। दरवाजा मत खोलो, अंदर से राबेल की दोस्त को पैगाम दो कि मैं आ गया हूँ, जल्दी सामान लेकर आए। दरियाब शीशा नीचे करके बोला और सुल्तान अंदर की तरफ बढ़ा। बेटा दरियाब साहब आपको लेने आए हैं, सुल्तान ने सामने इन सब के साथ बैठी नूर से कहा। क्या आ भी गए? नूर मायूसी से बोली। मेरा मोबाइल ऊपर रह गया, मैं लेकर आती हूँ, नूर बोली और ऊपर की तरफ बढ़ी। मुझे हर हाल में अपने साथ पिस्टल रखनी होगी, राबी के भाई के कमरे में ही जाना पड़ेगा, वहां से ही कुछ मिल सकता है। नूर बड़बड़ाई और अपने कमरे की बजाय सामने दरियाब के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरा बहुत बड़ा था, किसी परफ्यूम की खुशबू के साथ साथ एक अजीब सी खुशबू आ रही थी जो परफ्यूम की खुशबू में रच गई थी। ये बंदा सिगरेट पीता है? सामने पड़ी सिगरेट की डबिया देखकर हैरत से बोली। उफ नूरी, जो काम करने आई हो वो करो। हाँ, पिस्टल अलमारी में होगी, नूर खुद ही बोली और अलमारी खोलने की कोशिश की मगर वो लॉक थी। फिर वो चलती हुई बेड के पास वाले दराज में देखने लगी। खुशकिस्मती से इसकी चाबी वहां ही लगी थी। शायद दरियाब वो लॉक करना भूल गया था। उसने खोला तो सामने ही सेम वैसी 9mm नजर आई जैसी दोपहर दरियाब के हाथ में इसने देखी थी। इसने वो उठाई, 7 गोलियां भी उठाई और अपने पीछे से बैग उतारा और उसमें डाली और शुक्र का सांस लेकर कमरे से बाहर निकली और नीचे जाकर सबसे मिली और बाहर की तरफ बढ़ी। सुल्तान अंकल, एक चीज चाहिए थी, नूर ने गेट से थोड़े दूर सुल्तान को कहा तो वो इसकी तरफ आ गया। जी बेटा बोलो, सुल्तान नासमझी से बोला। अंकल कोई रस्सी शस्सी होगी आपके पास? नूर ने पूछना चाहा। लेकिन आपने क्या करनी है? सुल्तान बोला। अंकल वो मेरे बाबा कहते थे जब भी रात को बाहर जाओ रस्सी लाजमी लेकर जाओ, कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। नूर ने अपने से कहानी बनाई और बोली। मैं देता हूँ बेटा, पर आप परेशान ना हो, आप दरियाब साहब के साथ हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता आपको, सुल्तान बोला और इसे रस्सी ला कर दी। इसे क्या पता था कि वो दूसरों को परेशान कर देगी, वो खुद क्या होगी परेशान। नूर ने वो रस्सी लेकर अपने बैग में डाली और बैग पीछे पहन लिया। अच्छा सुनिए अंकल, प्लीज ये बात किसी को मत बताना वरना वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, नूर बोली। आप परेशान ना हो बेटा, मैं नहीं बताऊंगा, सुल्तान बोला और नूर गेट से बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। राबी का कुछ पता चला? बड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके पूछा। तब से वहां से खामोशी थी। दरियाब ने एक नजर उसको देखा फिर बोला। वो बस इतना ही बोला। क्या वाकई कहाँ है वो? इस माजे को अच्छा सबक सिखाया होगा आपने, नूर खुशी से बोली। माजे? दरियाब ग्लासेस उतार कर उसकी तरफ देखकर बोला। नूर ने नजरें चुरा ली और सामने देखकर बोली। दरियाब ने इसकी ये हरकत नोट की थी कि वो जब भी ग्लासेस उतारता था वो इससे नजरें चुरा लेती थी। हाँ जी माजे, राजे का नाम रखा है मैंने, राजा माजा। तो माजा से माजे अच्छा है ना, नूर हंसते हुए बोली। वाह भाई वाह, दिल कर रहा है तालियां बजाऊं पर क्या करूं, हाथ नहीं फारे। दरियाब तंजिया बोला। है ना मजे का नाम, मुझे पहले ही पता था। आप देखना जब मैं ये नाम राबी को बताऊंगी ना वो कितना हंसेगी। वैसे आपसे हंसने की उम्मीद मैंने लगाई भी नहीं थी, नूर बोली। क्यों? दरियाब ने पूछा। क्यों? क्योंकि आपको हंसते हुए मौत पड़ती है ना। अब मुझे नहीं पता मौत को दूसरी जबान में क्या बोल सकते हैं। इस जुमले में नूर बोली और दरियाब इसे हैरत से देख रहा था। ये कौन सी जबान बोलती हो तुम? दरियाब बोला। ये नवारी जबान है, नूर बोली। ये कौन सी जबान होती है? मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना, दरियाब नासमझी से बोला। सुनेंगे भी नहीं क्योंकि ये मेरी अपनी जबान है। ये देखे, नूर वैसे हंसते हुए बोली और अपनी जबान बाहर निकाल कर दिखाई। वैसे नवारी का मतलब नूरी की जबान है, नूर हंसते हुए बोली। दरियाब तप ही गया। तुम पागल हो बिल्कुल, दरियाब बोला। हाँ जी सभी कहते हैं, नूर बोली। एक मिनट यहाँ रोके, एकदम नूर बोली तो दरियाब ने ब्रेक लगाई। यहाँ क्या है? दरियाब नासमझी से बोला। वो दरबार है, कोई दुआ तो करने दे।
नूर सामने देख कर बोली, जो बाबा रावी दरबार था। वो छोटा सा दरबार था। नूर बोली। वो गाड़ी से नीचे उतरी। सुनो तो, दरियाब ने रोहन रोकना चाहा मगर वो ना रुकी। पहले तो वो इसे सामने की तरफ जाता देखता रहा, फिर खुद भी गाड़ी से नीचे उतरा और उसकी तरफ बढ़ा। अब दुआ के लिए हाथ उठाए खड़ी थी। वो चुप करके बस उसे देखता रहा। वो कभी किसी दरबार तो गया नहीं था, शायद कभी मस्जिद तक भी नहीं गया था। या अल्लाह जी, प्लीज मेरी मदद करें, मुझे यहाँ से निकलना है। पर ये खड़ूस जान ही नहीं छोड़ रहा। प्लीज प्लीज मेरी मदद करें। वो आंखें बंद करके बोली और मुंह पर हाथ फेर लिया और मुड़ी तो वो इसके सामने ही खड़ा था। चलें अब, दरियाब बोला। या अल्लाह, प्लीज कुछ करें, मुझे राबी के पास जाना है, प्लीज कुछ करें। वो आसमान की तरफ देखकर बड़बड़ाई। इतने में दूर से फजर की अजान की आवाज आई। इसने एकदम खुशी से मुड़कर देखा। अब क्या हुआ, जल्दी चलो, कल हर हाल में मुझे राबेल को लेकर आना है। दरियाब मुड़ा तो वहां मुड़कर खड़ी थी। तो बोला, अजान। वो बस इतना ही बोली। तो दरियाब बोला, क्या मतलब? तो मुझे नमाज पढ़नी है। नूर बोली, इस टाइम? अभी चलो, अपने घर जाकर जितनी मर्जी पढ़ लेना। दरियाब बोला, नहीं, मैं यहाँ से फजर पढ़कर ही जाऊंगी। आपको ज्यादा जल्दी है तो आप जाएं यहाँ से। नूर बोली, उफ, कहाँ फंस गया हूँ यार, मैं गाड़ी में हूँ, जल्दी पढ़ कर आओ। दरियाब बोला और गाड़ी की तरफ बढ़ा। आप नहीं पढ़ेंगे? नूर ने आवाज देकर पूछा। नहीं, वो एक लफ्ज बोला। क्यों? वो हैरत से बोली। मुझे जरूरत नहीं, दरियाब बोला। खैर, मैं नमाज पढ़कर आई, वो बोली और वुजू करके नमाज के लिए बढ़ी। वो गाड़ी में तो बैठ गया था मगर इसकी नजरें उस पर थी। वो नहीं जानता था कि इसे क्या हुआ था। वो अब दुआ मांग रही थी। एकदम उसका फोन बजा तो वो अपनी होश में वापस आया और फोन कान से लगाया और बात करने लगा। बात करके फोन साइड पर फेंका और सामने उसे देखा। वो अब वहां मौजूद नहीं थी। ये कहाँ गई? वो एकदम गाड़ी से उतरा और इधर उधर देखा मगर वो वहां कहीं नहीं थी। वो भागते हुए वहां गया और उसे ढूंढने लगा। ये कहाँ जा सकती है? भाई साहब, यहाँ जो लड़की नमाज पढ़ रही थी, आपने उसे देखा है? दरियाब ने एक आदमी से पूछा। अभी तो यही थी वो बच्ची, पता नहीं कहाँ गई। उफ, अब इसे कहाँ ढूंढूं? ये कहाँ जा सकती है? मुझे उसे अकेले नहीं भेजना चाहिए था। कहीं राजा के आदमी तो नहीं ले गए? अब उसे परेशानी होने लगी थी। नहीं, वो इस सरफिरी को इतनी आसानी और खामोशी से नहीं लेकर जा सकते। हर तरफ देख चुका था मगर वो कहीं भी नहीं थी। अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उसे? परेशानी से अपने माथे पर आते बालों को पीछे किया। भाई साहब, प्लीज मेरे साथ मिलकर ढूंढे उसे। दरिया परेशानी से उस आदमी को बोला और उसे ढूंढने लगा। नूरी राजा के डेरे से कुछ फासले पर मौजूद छुप कर वहां का जायजा ले रही थी। सुबह के 6 बज चुके थे। सामने काफी ज्यादा चौकीदारों का पहरा था लेकिन सब के सब नींद में थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आगे की तरफ बढ़ी। चौकीदारों के सोने का फायदा उठाते हुए वो दबे पांव अंदर की तरफ बढ़ी। अंदर हर तरफ अंधेरे का राज था। कहाँ रखा होगा इन्होंने राबी को? वो सोचते हुए ढूंढने लगी। सामने एक कमरा था। इसने एक झटके से दरवाजा खोला और खुद दरवाजे की साइड पर हो गई ताकि अगर कोई होगा तो वो उसकी आवाज से पहचान जाएगा और इसकी तरफ आ जाएगा। तो इसने अंदर झांका। वो कमरा भी अंधेरे में डूबा हुआ था। वो अंदर दाखिल हुई और वहां का जायजा लेने लगी। कहाँ ढूंढूं राबी को? पता नहीं कहाँ छुपाया होगा इस माजे ने राबी को। ऐसे ढूंढना मुश्किल काम है। मुझे खुद को पकड़वाना होगा इनके हाथों। हाँ, ये सही है, फिर मुझे राबी तक ये माजे शाजे खुद पहुंचाएंगे। वो बड़बड़ाई और कमरे से बाहर निकली और जोर से दरवाजा बंद किया। इतने जोर से कि उसकी आवाज हर तरफ गूंजी थी। कौन है? कौन है? 2 आदमी भागते हुए अंदर की तरफ आए और बोले। मैं। नूर हाथ उठाकर मासूमियत से कहा। तुम अंदर कैसे आई और कौन हो तुम? उन आदमियों ने इस पर पिस्टल तान दी और बोले। वो मैं मुसाफिर हूँ। हाँ, मैं मुसाफिर हूँ, अपने दोस्तों के साथ आई थी और अब खो गई हूँ। नूर रोने वाली आवाज निकाल कर बोली। इन आदमियों ने एक दूसरे को देखा। भेज दे यार इसे, वैसे भी मुसाफिर है और अगर बॉस को पता लग गया कि हमारे होते हुए कोई लड़की डेरे में आ गई तो वो हमें जान से मार देंगे। एक आदमी दूसरे आदमी के कान में बड़बड़ा कर बोला। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। दूसरे आदमी ने नूर को बोला। नहीं, लेकिन तुम मुझे कैसे जाने दे सकते हो? वो बोली। शुक्र करो बचकर जा रही हो यहाँ से। यहाँ जो आता है वो बचकर नहीं जाता, वो आदमी बोला। अरे पागलों, क्यों भेज रहे हो मुझे? याद करो, अब मुझे ये लोग भी रखने को तैयार नहीं। वो तब कर बड़बड़ाई। जाओ यहाँ से वरना गोली चला दूंगा, वो आदमी गुस्से से बोला।
नहीं जाऊंगी, और अब मुझे जाने का कहा तो गर्दन उड़ा दूंगी तुम्हारी। वो उल्टा गुस्से से उस आदमी को देखकर बोली, और वो दोनों हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। तेरी तो, एक आदमी गुस्से से बोला और उसकी तरफ बढ़ा। खबरदार हाथ लगाया तो शोर मचा दूंगी। बचाओ बचाओ, वो जोर जोर से रोने लगी और चीखने लगी। इसके चीखने की आवाज सुनकर सारे वहां इकट्ठे हो गए। राजा भी वहां आ चुका था। बता, किसने भेजा है तुम्हें? उस राणे ने। इसको तो मैं अपने हाथ से मारूंगा, राजा गुस्से से बोला। हाथ तो लगा कर दिखाओ, इन्हें तुम्हारा मुंह दूसरी तरफ ना लगा दिया तो कहना। नूर उसकी शक्ल देखते हुए दिल में बोली। अभी वो कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि पहले उसे राबी को सही जगह पहुंचाना था। बोल, उस दरियाब ने भेजा है ना? वैसे बड़ा ही डरपोक निकला, वो तो एक लड़की को भेज दिया अपनी जगह। वो गुस्से से बोलता हुआ हंसने लगा। नहीं, मैं किसी दरियाब को नहीं जानती। मैंने आपको बताया तो है, मैं सफर पर आई थी दोस्तों के साथ। नूर बोली। दिल तो कर रहा है जान निकाल दूं इस मनहूस की। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी राबी को हाथ लगाने की। बस एक दफा राबी का हाथ लग जाए, राबी मेरे हाथ लग जाए, फिर तुम्हें बताऊंगी नूरी किस चुड़ैल का नाम है। काके इसकी शक्ल देखकर दिल में बोली। बड़ी खूबसूरत हो, ये कपड़े से अपना सर क्यों कवर किया है? वो बेगैरती से बोला और इसके करीब हुआ। वो इसके हिजाब की तरफ बढ़ा। पीछे रहो, दूर रहो मुझसे। नूर एकदम पीछे हुई और बोली, ओए शेरू, मैडम जी को लेकर जाओ और इन लड़कियों के साथ बंद कर दो, मजा आएगा। इसने मनहूस हंसते हुए बाहर से एक बंदे को आवाज लगाई और बोला। वो शेरू नामी आदमी इसे बेसमेंट में ले गया और एक कमरे की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता, नूर ने अपना चेहरा ढांप लिया ताकि राबेल इस शख्स की मौजूदगी में इसे ना पहचाने। लो, एक और साथ आ गई तुम लोगों के। दरवाजा खोलते ही इसने नूर को धक्का दिया। वो बहुत बुरी तरह घिरी उस कमरे में। उस कमरे में पहले से ही दो लड़कियां मौजूद थी। एक तो राबेल थी, लेकिन एक पता नहीं कौन थी। इसने राबेल को देखकर शुक्र का सांस लिया। वो दोनों इसे खौफ से देख रही थी। वो चला और दरवाजे पर ताला लगा गया। जब वो जरा दूर गया तो नूर ने मुंह से कपड़ा हटाकर राबेल को देखा। नूरी, वो भाग के इसकी तरफ आई और इसके गले लग गई और रोने लगी। क्यों रो रही हो मेरी जान? तेरी नूरी आ गई, अब देख मैं इनका क्या हाल करती हूँ। बस कर रोना। नूरी ने इसके आंसू साफ किए और बोली। एक अनजान चेहरा इन्हें एक साइड पर बैठा देख रहा था। राबेल को चुप करवा कर वो इसकी तरफ बढ़ी। आप कौन है? और यहाँ मतलब क्यों बंद करके रखा हुआ इन्होंने आपको? नूर उसके पास बैठी और उसके चेहरे पर बहुत से चोटों के निशान थे। इसको उस पर तरस आया, कुछ नहीं बोली, बस नूर का चेहरा देखती रही। तो नूर ने एक नजर राबेल को देखा। ये बोल नहीं सकती, तकरीबन 1 साल से इसकी कैद में है। इसके माँ बाप को राजा कत्ल कर चुका है और इसको अपनी कैद में रखा हुआ है और इसे बहुत मारता भी है। राबेल ने सारी बात बताई, जिसे सुनकर नूर की पलकें भीग गई थी। एक बेजुबान की आह लेकर जाने कहाँ क्या कर लेगा इसको, या क्या मिल जाएगा। मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, ये मेरा तुमसे वादा है, प्यारी नूर बोली। तो वो लड़की इसके गले लग गई और खूब रोई, जिससे इन दोनों की आंखें भीग गई। मैं समझ नहीं पा रही, माफी चाहती हूँ। वो लड़की इशारों में कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन नूर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो बोली, ये क्या कह रही है? मुझे यहाँ से आज़ादी नहीं चाहिए, राबेल ने कहा। तो इस लड़की ने सर हिला दिया कि वो यही कहना चाहती है। क्यों, तुम्हारा दिल नहीं करता आज़ाद होने को? नूर ने पूछा। इसने ना के लिए गर्दन हिला दी। लेकिन क्यों, तुम क्यों आज़ाद नहीं होना चाहती? नूर ने पूछा। तो इशारों में बताने लगी, ये कह रही है कि आज़ाद होकर क्या करूंगी मैं? जिनके लिए आज़ाद होने की ख्वाहिश रखती हूँ वो कभी आएंगे नहीं, तो क्या करूंगी आज़ाद होकर? राबेल ने बताया, तुम्हें यहाँ से निकलकर इनको सबक सिखाना होगा। तुम्हें अपने वालिदैन का बदला लेना होगा इन भेड़ियों से। इनका वो हाल करना कि ये लोग किसी के साथ ये सब करने के काबिल न रहें। नूर बोली, इसे बहुत तरस आ रहा था इस पर। मैं कमजोर हूँ, इसने इशारे में कहा। मैं तुम्हें ताकतवर बनाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। नूर इसके आंसू साफ करते हुए बोली, तुम भी तो लड़की हो, इसने इशारों में कहा। तो लड़की हूँ, बुजदिल या कमजोर तो नहीं। लड़कियां कमजोर नहीं होती, बस ये दुनिया वाले इन्हें कमजोर बना देते हैं। लेकिन हमें दुनिया वालों की बातों में नहीं आना, हमें बस मजबूत बनना है, समझी तुम? और ये बात अपने जहन में बिठा लो कि कमजोर नहीं हो तुम। जहां करोगी तुम्हें मैं संभालूंगी। खुद को कभी अकेला मत समझना,
हम तुम्हारे साथ हैं, नूर बोली तो इसके गले लग गई। वो कितनी मजबूर थी, किसी को अपना दुख भी खोलकर नहीं बता सकती थी, जरूरत पड़ने पर किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकती थी। कैसे इसने एक साल गुजारा होगा, क्या क्या बर्दाश्त किया होगा। दरियाब ने अपने बंदों के साथ इस जगह को घेर लिया था, बस हमले की तैयारी कर रहे थे। इधर नूर उनको वहां से भागने का प्लान बताकर उनको तैयार कर रही थी। दरियाब ने बाहर हमला कर दिया था, इस बात से वो तीनों अनजान थी। ये लोग बेसमेंट में थी तो बाहर क्या हो रहा था ये लोग नहीं जानती थी। तुम लोग तैयार हो, आवाज आ रही है, वो आ रहा है। इधर नूर बोली। दरवाजे के साइड वाली दीवार के साथ नूर रस्सी पकड़ कर बैठी थी और इसके सामने राबेल रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ कर बैठी थी। दरवाजे के सामने वो लड़की जिसका नाम सिद्रा था। राबी तैयार रह। जैसे ही वो अंदर आए, रस्सी उसके आगे जाने लगे तो फौरन रस्सी खींचना और सिद्रा फौरन वहां से साइड पर होकर वो डंडा उसके सर पर मारना है। ओके? दोनों ने हाँ में सर हिलाया। हाय हसीन लड़कियां और मैं, यूं दूर दूर क्यों बैठी हो तुम लोग? दोस्ती करो एक दूसरे से, अब तो सारी जिंदगी साथ रहना है। राजा बोलता हुआ आगे बढ़ा और जैसे ही रस्सी के पास आने लगा, दोनों ने रस्सी खींच दी और बुरी तरह मुंह के बल गिरा। सिद्रा फौरन उठी और डंडा इसके सर पर मारा। उसकी चीख निकली, ये चीज मेरी शेरनियों, जल्दी निकलो अब यहाँ से। नूर खुशी से बोली और अब इनके साथ भागकर कमरे से बाहर निकली। 1 मिनट नूर इसको रोका और दरवाजा बंद करके ताला लगाने लगी। फिर अपने बैग में से मिर्च का डब्बा निकाला। वो इसे हैरत से देख रही थी कि वो क्या क्या उठा लाई थी। यार अब ऐसे ना देख, पैसे दे दूंगी तेरे भाई को इस डब्बे और मिर्चों के। नूर इसे देखकर बोली, जो इसे हैरत से देख रही थी। तीनों हंसने लगी। ये तुम दोनों डब्बा पकड़ो, जो पास आने लगी इसकी आंखों में डालो। नूर ने डब्बा दिया और बोली, और तुम? सिद्रा ने इशारे से पूछा। मेरी जान, मेरी फिक्र छोड़ दो, मैंने कराटे आज के दिन के लिए ही सीखे थे। अब चलो, बाद में मुझे ऐसे देखकर नजर लगाना। नूर हंसते हुए बोली और आगे की तरफ बढ़ी। सामने से आता आदमी इनकी तरफ आया तो नूर ने उसके गर्दन में हाथ डालकर जंप किया और उछल कर दोनों पांव उसके पेट में मारे और उसे धक्का देकर वहां से आगे बढ़ी और बेसमेंट से बाहर निकली। बैग में रखी 9mm निकाली। नूरी, ये तो हाँ तेरे भाई की है, फिक्र ना कर, मैं वापस कर दूंगी। राबेल अभी बोलने लगी थी कि नूर बोली। वो लोग बाहर से निकली तो सामने का मंजर देखकर हैरान खड़ी रह गई। वहां तो ऐसे था जैसे कोई जंग चल रही थी, कहीं गोलियों का शोर, कहीं मारपीट, ये सब क्या हो रहा है? वो लोग हैरत से बोली। भागो यहाँ से, हम बहुत आराम से भाग सकते हैं, अब जल्दी करो, नूर बोली और ये लोग आगे की तरफ बढ़ी। नूर एकदम पीछे मुड़ी तो राबेल जो सामने से आते आदमी की तरफ मिर्चें फेंक रही थी वो नूर की आंखों में पड़ी, जिससे इसकी चीख निकल गई शदीद किस्म की और इसकी आंखें जल रही थी। नूरी, वो दोनों ने परेशानी से उसे देखा जो तकलीफ से तड़प रही थी। इसके हाथ मिर्चों से भरे थे, वो लोग इसको हाथ भी नहीं लगा सकते थे। भागो तुम लोग यहाँ से जल्दी, मेरी फिक्र मत करो, जाओ, वो जोर से चीखी। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, राबेल बोली। राबी, तुझे मेरी कसम, जाओ यहाँ से, नूर जोर से चीखी। वो लोग फिर भी नहीं गई। मिर्चें खत्म हो चुकी थी और नूरी की आंखें सही नहीं थी। 1-2 आदमी इनकी तरफ बढ़े, इन्होंने नूर को बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ किया। छोड़ो इसे, नूर, राबेल चीखी। नूरी बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी। छोड़ो मुझे, दूर रहो, नूर आंखें मसलते हुए बोली। नूर वहां से भागने लगी थी कि पीछे से खड़े आदमी ने इसका हिजाब वाला दुपट्टा खींचा। इससे वो झटके से रुकी। इसका हिजाब ढीला हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसका मुकम्मल दुपट्टा खुल गया। भाई, वो रही लड़कियां। दरियाब के एक आदमी की नजर इन पर पड़ी तो वो दरियाब के पास आया जो एक आदमी को मार रहा था। इसने गुस्से से लाल आंखों से वो मंजर देखा और इसकी तरफ भागा। वहां पहुंचकर इस आदमी के हाथ पर जोर से अपना पांव मारा, जिससे वो इसका दुपट्टा पकड़े खड़ा था। तेरी इतनी जुर्रत, मैं जान से मार दूंगा तुझे। गुस्से से इसका गिरेबान पकड़ा और इसके मुंह पर मुक्के मारे। वो बंदा बेहोश हो गया तो इसे धक्का देकर फेंक दिया। दरियाब भाई, राबेल बोली। दरियाब ने एक नजर उसे देखा, एक नजर सामने बैठी नूर को जो अपने खुले बालों को कवर करने की कोशिश कर रही थी। वो जमीन पर झुका और इसका दुपट्टा उठाया और उसके सर पर दिया और उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। चलो जल्दी निकलो गाड़ी की तरफ, दरियाब बोला और इनको लेकर गाड़ी में बिठाया और वहां से निकल गया। भाई प्लीज जल्दी करें, नूरी बहुत तकलीफ में है। सिद्रा राबेल के साथ पीछे ही नूर के साथ बैठी थी जो बहुत तकलीफ में थी। दरियाब ने हार्न पर हाथ रखा हुआ था और फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहा था
हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रुकी तो इसने नूर को गोद में लिया और अंदर की तरफ भागा। वो दोनों भी पीछे भागी। तुम्हारी दोस्त वहां कैसे पहुंची? उसने कुछ बताया तुम्हें? हॉस्पिटल में दरियाब इधर उधर चक्कर लगा रहा था तो राबेल से पूछा। मैं नहीं जानती, शायद राजा के आदमी इसको उठा कर ले आए थे, जैसे मुझे उठा कर ले आए थे। राबेल बोली। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। अब हम इनके बाजू पर भी दोबारा पट्टी कर दी है, जख्म कच्चा है, थोड़ी एहतियात की जरूरत है। आप उनको पहले भी लेकर आए थे ना? वाइफ है आपकी? डॉक्टर आई और बोली। नहीं, वो मेरी कजन है, हमारी दरियाब को रोक गया था। तो राबेल ने खड़े होकर कहा। ठीक है, आप इन्हें ले जा सकते हैं, डॉक्टर बोली और वहां से चली गई। कुछ देर बाद ये लोग उसे लेकर घर वापस आ गए। सिद्रा भी उन्हीं के साथ थी। सब ने इन्हें देखकर शुक्र का सांस लिया था। दरियाब आता ही अपने कमरे में चला गया। राबेल और नूर ने सिद्रा का तारुफ सबसे करवाया। रात का खाना खाकर वो अपने कमरे में आ गई। दरियाब रात के खाने के लिए भी कमरे से बाहर नहीं आया था। यार, वैसे जब से हम इस कमरे में आए हैं, इस कमरे में लड़कियों की बरकत ही होती जा रही है। राबेल हंसते हुए नूर से बोली। हम हैं ही बरकत वाले। जानू, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, नूर बोली। मैंने क्या किया? वो नासमझी से बोली। अस्तगफिरुल्लाह, राबी मुझे अंधा करने लगी थी और अब कह रही हो कि तुमने क्या किया है, नूर बोली। यार, वैसे भाई तो कह रहे थे वो तुम्हें छोड़ने इस्लामाबाद जा रहे थे, तो सोचने की बात है तुम डेरे पर कैसे पहुंची, और वो भी रस्सी, मिर्चें और 9mm वगैरह लेकर, मतलब पूरी तैयारी से। राबेल सोचते हुए बोली। हाय, बड़ी लंबी कहानी है, वो छोड़ दे। बस ये याद रख के मेरे होते हुए तेरी तरफ उठने वाले हर वार को वापस मोड़ दूंगी, नूर बोली और इसका हाथ पकड़ा। यार, मुझे भी बताओ कि वहां क्या क्या हुआ, आयशा बोली। हाय आशी, ये अपनी नूरी बिल्कुल किसी शेरनी की तरह वहां दाखिल हुई और इनकी बैंड बजा दी। सब हैरत से उसे देखते रह गए, और फिर जब इसकी आंखों में मिर्च पड़ गई तो उस आदमी ने इसका हिजाब खींच दिया, और तुम सोच नहीं सकती दरियाब भाई ने इसका क्या हाल किया। राबेल सारी बातें बताती रही, लेकिन नूर कहीं और ही गुम हो गई थी। वो घबराते हुए इसके कमरे में पहुंची पिस्टल को वापस रखने। शुक्र है वो यहाँ नहीं है। चल नूरी, जल्दी से रख और निकल, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए। बड़बड़ाते हुए कमरे में गई और जहां से उठाई थी वहां रखने लगी। हाय अल्लाह, ये तो लॉक है। बेड के पास पहुंची और दराज खोलने लगी, मगर वो ना खुला। इसी दौरान दरियाब कमरे में अपने ध्यान में दाखिल हुआ था और सामने उसे पाकर हैरान खड़ा रह गया। फिर इसके पास गया और बोला, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो इसकी आवाज पर मुड़ी और बहुत बुरी तरह डर गई थी और जमीन पर बैठी बैठी गिर गई। हाय अल्लाह, तेरा तरा निकाल दिया मेरा तो। वो खड़ी हुई और बोली, तरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चोरी करने आई थी। दरियाब उसकी घबराहट देखकर महफूज हुआ। सन ग्लासेस उतारे और हाथ बांध कर बोला, आपको मैं शक्ल से चोर लगती हूँ? मैं बस वो इधर उधर देखते हुए जुमला बनाने की कोशिश करने लगी थी, मगर इसके देखने की वजह से जो दिमाग में था वो भी जा चुका था। ये क्या, वो क्या लगी हुई हो? अगर तुम चोरी नहीं की तो आंखें क्यों चुरा रही हो? दरियाब ने उसे देखते हुए बोला। नहीं, मैंने चोरी नहीं की और ना ही मैं इसलिए नजरें चुरा रही हूँ। वो अपने हाथ की उंगलियों की तरफ देखते हुए बोली। दरियाब मुस्कुराता हुआ बोला। इसने आहिस्ता आहिस्ता मुंह ऊपर किया और इसके देखते ही आंखें जोर से बंद कर ली और अपने हाथों पर पिस्टल रखी और दोनों हाथ उसके सामने कर दिए। उस दिन मैं ये साथ लेकर गई थी आपकी इजाजत के बगैर। मैं राबेल को मुसीबत में नहीं देख सकती और इसे मुसीबत में छोड़कर खुद इस्लामाबाद नहीं जा सकती थी। बस अब ये वापस रखने आई थी और आप पता नहीं कहाँ से नाजिल हो गए। मेरा मतलब पता नहीं कहाँ से आ गए। मैं भाग रही हूँ, सॉरी। इतनी स्पीड में वो बोली कि दरियाब हैरत से इसे देखता रह गया। इसने बात मुकम्मल की और पिस्टल बेड पर फेंक कर वहां से भाग गई। अरे रुको, दरियाब ने पीछे से आवाज दी, मगर वो जा चुकी थी, ऐसे जैसे किसी कैद से भागा हो।